Hello, good afternoon, students. Class 11th biology students. Yes, come for the session. Good afternoon, everyone. Not much students have joined in. So far, I am able to see the strength is very less. Yes, be ready fast for the session. Good afternoon. Yes, I can see. Hello. I can see Madhu Manoj, Vimla, Yuvraj, Deepu, Samika, Rajender. Yes, they all are here. Very less strength right now. Ankit, good afternoon. Kajal, Aryan, Rishabh, Sakshi. Yes. So join in fast. Session is going to start soon. Shahid, Sanjay, Sidhu. Yes. Okay. So today we are going to have a session for class 11 biology students of chapter 4 Animal Kingdom, and I'm going to have sixth session on this chapter on 5th of May 2020. I, Monica Malhotra, PGT Biology from KV Push Bihar, New Delhi. I'm going to start the session for chapter Animal Kingdom right now. Okay, so first of all, the recap for the last session. A quick recap, some questions for you students. Question number 1, name the arthropods. You remember we discussed about arthropoda yesterday, phylum Arthropoda. So all these questions are about arthropoda only. Question number 1, name the arthropod which is a living fossil. Just answer the A part, living fossil. You have to name the arthropod which is also a living fossil. Yes. Yes, good afternoon everyone. Yes, I can see students are joining in fast. Yes. Now answer the first question. Name the arthropod which is a living fossil. Okay, Veena has given the correct common name, king crab. Yes, I want the scientific name. Does anyone remember the scientific name? Yes, Himani Bhatnagar is the first one to answer correctly. It is Limulus. Yes, Rajkumar is also correct. King crab, Limulus is the living fossil. Very good. Okay, Himani ने second का भी आंसर दे दिया. Second is gregarious pest के बारे में बताना है. Name a gregarious pest comes under arthropoda. So Himani correctly said it is gregarious pest is locust. Locust. Yes, Virender is correct. बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया अब तो. प्रोमिला ने बता दिया, मंजू ने बताया लिमुलस स्प्रिंग क्रैब, दीपू यस, वीरेंद्र, उर्वी सब सही हो. स्नेहा ने किंग क्रैब आंसर दे दिया. नित्यांजलि यस. शिखा ने आंसर नहीं दिया है अभी. प्रिया, अनिता, मीना यस. यू ऑल आर करेक्ट बेटा. दीपू इज करेक्ट, प्रीत इज करेक्ट. यस. अब वीरेंद्र राणा बिल्कुल सही, आपने सेकंड पार्ट का भी आंसर दे दिया. इट इज लोकस्ट. ठीक है, लोकस्ट इज द आर्थ्रोपोड व्हिच इज अ ग्रेगेरियस पेस्ट. साक्षी बिल्कुल सही आंसर है. मंजू, उर्वी yes. Okay, so locust is the correct answer for gregarious pest. फर्स्ट का बी पार्ट का आंसर है लोकस्ट. ए पार्ट आप ऑलरेडी बता चुके हो, लिमुलस. लिविंग फॉसिल लिमुलस है, किंग क्रैब, और ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट है. वेरी गुड. अनिता इज करेक्ट. प्रीत यस. दीपू, नित्यांजलि, सुजित, अनु सब सही आंसर है बेटा. सुजित कुमार साहब बिल्कुल सही. ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. द ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स इज. yes, Preet Shikha has given the correct answer. Malpighian tubules. बिल्कुल सही. रीना राय ने मालपिजियन ट्यूब्यूल बताया. सही, बिल्कुल सही आंसर है बेटा. यस. गीता, मधु, प्रोमिला, सुजीत आप पुराने आंसर दे रहे हो. लोकस सही आंसर. वीरेंद्र राणा यस, मालपिजियन ट्यूब्यूल इज द करेक्ट आंसर. यस. ओहो हिमानी, यू आर वेरी फास्ट. सारे आंसर करेक्ट दे दिए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. वेरी गुड. एक एक करके चलते बेटा. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मालपिजियन ट्यूब्यूल. थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. चलिए अब ये बताइए. ये सनिका, नित्यांजलि,
सब सही बोल रहे हो. Yes, Virender Rana and Himani are the first ones to answer. Name the largest phylum of animal kingdom. It is phylum Arthropoda, जिसमें इंसेक्ट्स की वैरायटी है. और भी बहुत सारे हैं, प्रॉन है, मिलीपीड, सेंटीपीड, है ना, किंग क्रैब, सब आते हैं इसके अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स है ये, इसीलिए ये लार्जेस्ट है फाइलम. राइट, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप. वेरी गुड. यस, साक्षी ने आर्थ्रोपोडा बोला. स्पेलिंग बेटा ध्यान से टाइप करो सब. सनिका, काजल, यस, वेरी गुड. यस, आकांक्षा महतो, यस सही आंसर है. नित्यांजलि, वीना, राजेंद्र, सही आंसर है बेटा. चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स एरेक्निड्स हैव? कल मैंने आपको बताया था कि फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है, उसकी क्लास एरेक्निडा है. स्पेशल क्लास है एरेक्निडा, जो इंसेक्ट से डिफरेंट है. लगती है इंसेक्ट जैसी, लेकिन इंसेक्ट से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. कल हमने डिटेल में पढ़े थे. और इसके आपको मैं क्लू के लिए एग्जांपल्स बता दूं. स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, दे कम अंडर एरेक्निड्स. ओके, तो अब बताइए उनमें कितनी पेयर लेग्स की होती है? यस, नित्यांजलि, सही आंसर है. 8 लेग्स है. मैंने अगर पेयर पूछा है तो आपको 8 नहीं देना है आंसर. फिर कितने पेयर हुए? 4 पेयर्स. ठीक है, टोटल 8 लेग्स आर देयर, बट इफ यू आर आस्क्ड पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स, देन 8 आंसर गलत हो जाएगा. वहां करेक्ट आंसर क्या देना है? 4 पेयर ऑफ लेग्स. ओके, बिल्कुल सही. ये सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं. मंजू, उर्वी, खुशी, रघुनाथ, प्रिया, मीना, गीता, सलोनी, साक्षी, अनु, प्रमिला, स्नेहा, मीना, प्रीशिखा, अनिता, सही आंसर है बेटा. दीपू, बिल्कुल सही. अनु ने अब सही आंसर दिया फोर्थ क्वेश्चन का, 4 पेयर ऑफ लेग्स. वेरी गुड. मंजू 4 पेयर सही बताया. सनिका ने सही बताया 4 पेयर्स. समझ में आ गया सबको? हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स एरेक्निड्स हैव? 4 पेयर ऑफ लेग्स. नाउ वी कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. The sensory organ to maintain position and balance in arthropods is, एक स्पेशल सा सेंसरी ऑर्गन बताया था मैंने आपको. मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड के मेंबर्स में होता है, और वो इनके पोजीशन को बैलेंस करके रखता है ना, इनके बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है. तो बताइए इस सेंसरी ऑर्गन का नाम क्या है? हाँ जी, यस, काजल, करेक्ट आंसर बेटा. स्टैटोसिस्ट, बिल्कुल सही. अनु ने बताया स्टैटोसिस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. ये सनिका, गॉड, आप पूछ रहे हो पेयर्स. 4 पेयर्स है बेटा. ठीक है सनिका, एरेक्निड्स में 4 पेयर्स है. इंसेक्ट्स में 3 पेयर होते हैं लेग्स के, और एरेक्निड में 4 पेयर्स होते हैं. बिल्कुल सही. ठीक है, अब समझ में आ गया सबको? स्टैटोसिस्ट, यस, मंजू हैज गिवन द करेक्ट आंसर. उर्वी ने स्टैटोसिस्ट बता दिया, है ना. वीना ने बता दिया. वीरेंद्र, यस करेक्ट. काजल ने स्टैटोसिस्ट बोला, बिल्कुल सही है. मीना 8 नहीं आंसर देना है. ठीक है, 4 पेयर्स. 8 लेग सही है, पर क्वेश्चन पेयर पूछे हैं, है ना. तो गीता आपको 4 पेयर बताने हैं. यस, मीना रावत इज नाउ करेक्ट, 4 पेयर्स. सनिका, गॉड, बिल्कुल सही है. स्टैटोसिस्ट, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो. प्रीत ने सही आंसर दिया. उर्वी ने सही आंसर. अनु, रघुनाथ, यस, आप सब सही बोल रहे हो. स्नेहा, अनिता, मीना, सुजीत, सलोनी, नित्यांजलि, यस, बिल्कुल सही. चलिए अब हम चलते हैं आगे. आर्यन, बिल्कुल सही हो आप. आर्यन, आर्या, सही आंसर. चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के सेशन पे. ओके, आज के सेशन में अब हम नेक्स्ट फाइलम करेंगे जो हमारा कल छूट गया था. इट इज फाइलम मोलस्का. ये मोलस्का फाइलम के मेंबर्स हैं. ठीक है, बड़े ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं ये. इनको अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए शेल की जरूरत होती है. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में मोलस्का के. एग्जांपल देखो इनके क्या है. देखिए ये सीपिया है. ठीक है, ये सीपिया. कॉमन नेम देखो इसका, कटल फिश. दिस इज कॉमनली कॉल्ड कटल फिश, सीपिया. ठीक है, ये है लॉलिगो. लॉलिगो का कॉमन देखो क्या है, कॉमन नेम स्क्विड. ठीक है, ये है पिंकटाडा. पिंकटाडा इज पर्ल ऑयस्टर. ये वो ऑयस्टर है, देखो ऑयस्टर के दोनों अपर और लोअर ये प्लेट्स है, और इनके बीच में ऑयस्टर का पर्ल बनता है. पर्ल्स बनाते हैं ये. ठीक है, तो ये पर्ल ऑयस्टर है. ओके, देन सबको थोड़ा सा आइडिया तो होगा पर्ल कैसे बनता है इनकी बॉडी में. इनकी मेंटल कैविटी अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं. इनकी बॉडी की कैविटी में जब कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस फंस जाता है, कोई रेत का दाना या फिर कोई पेबल यहाँ पे अटक जाता है छोटा सा, जिससे इनको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है. तो उस इरिटेशन को रिलीव करने के लिए ये उसके आसपास एक सिक्रीशन बनाने लगते हैं. ठीक है, तो वो उसके ऊपर लेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब वो हार्डन हो जाता है पूरा लेयर्स, तो क्या हो जाता है वो, दैट टर्न्स इनटू पर्ल. ठीक है, वो पर्ल बन जाता है. तो इस तरह से नेचुरली इनके अंदर पर्ल का सिंथेसिस होता है. नेक्स्ट है
फाइला, ये टाइप स्टडी का एग्जांपल है। मैंने आपको बताया था हर एक फाइलम में हम एक टिपिकल उसका एनिमल चुनते हैं जिसमें फाइलम के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स ही दिखाई देते हैं, फिर उसको हम कहते हैं टाइप स्टडी का एग्जांपल है। तो हम मोलस्का के फाइलम को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइला, इसके ट्रेड्स को स्टडी करके, इसके कैरेक्टर्स को स्टडी करके। फाइला का कॉमन नेम क्या है? एप्पल स्नेल, ठीक है। ये है डेंटेलियम, देखो देखने में लगता है हाथी के दांत है, लग रहा है ना हाथी के दांत, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेंटेलियम। डेंटेलियम मतलब जैसे इसका कॉमन नेम है टस्क शेल, टस्क क्या होता है? हाथी का दांत। तो ये शेल्स है इसके, ऐसे ऐसे लगते हैं देखने में जैसे हाथी के दांत हो, इसलिए इसका नाम हो गया डेंटेलियम, ठीक है। ये ऑक्टोपस है, इसके बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टोपस, इसकी स्पेलिंग गलत है बेटा, OCTOPUS होना चाहिए था, PO गलत लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस डेविल फिश होती है, इसको बोलते हैं डेविल फिश, बहुत खतरनाक होता है, अपने प्रे को कभी छोड़ता नहीं अगर पकड़ लेता है तो, ठीक है। ये है कीटोप्लूरा, कीटोप्लूरा है ना, क्या बोलते हैं कॉमनली इसको? काइटन, ठीक है। ये आप देख सकते हो 8 काइटनस प्लेट्स है इसकी बॉडी के ऊपर, है ना, ये इसका स्केलेटन फॉर्म कर रही है, तो काइटन है ये। देन एप्लेसिया, एप्लेसिया क्या है ये? एप्लेसिया दिस इज सी हेयर, देखो देखने में ऐसा लग रहा है खरगोश हो, खरगोश की जैसी अपीयरेंस लग रही है इसकी, तो क्योंकि ये समुद्र में रहता है, खरगोश की जैसी अपीयरेंस है, इसलिए इसका नाम हो गया सी हेयर कॉमनली। और वैसे इसे साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? एप्लेसिया, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है एप्लेसिया, ओके। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग मेंबर्स हैं मोलस्का फाइलम के। चलिए अब हम इसके कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। जैसे कल एक बच्चा बता रहा था कि ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, बिल्कुल सही बात है। एनिमल फाइलम जो जितने भी है किंगडम एनिमलिया में, जितने भी फाइलम है उसमें लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? इट इज मोलस्का, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्का दे आर इधर टेरेस्ट्रियल और दे आर एक्वेटिक इन नेचर, ठीक है, या तो टेरेस्ट्रियल होते हैं या एक्वेटिक होते हैं, राइट। या तो जमीन पर रहने वाले होते हैं जहाँ थोड़ा मॉइस्चर अवेलेबल है वहां रहते हैं, या फिर पानी में ही रहते हैं। पानी में रहेंगे तो या तो मेरीन होंगे या फ्रेश वाटर होंगे, ठीक है, सॉल्टी वाटर में रहेंगे या फ्रेश वाटर में रहेंगे। एक्सक्यूज मी। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा, ठीक है। एक बार ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंट से शुरू हुआ तो वर्टिब्रेट्स तक, अब ये कॉर्डेट्स तक ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ही रहेगा, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री है, देखो इनकी बॉडी को अगर हम, ये प्लेन है सिमेट्री का, बिल्कुल सेंटर से अगर हम बाइसेक्ट करें, काटें, तो देखो इसको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे इसके, देख लो, लेफ्ट हाफ है, ये राइट हाफ है, ठीक है। क्योंकि इसके बॉडी को 2 इक्वल भागों में बांटा जा सकता है ये इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से काट के, तो इसीलिए इसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि कुछ ऐसे भी इसमें एनिमल्स हैं, जैसे मैक्सिमम इसमें एक क्लास आएगी गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जनरली ये जो सिमेट्री है वो लार्वल स्टेज में तो होती है बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन जल्दी ही जब वो एडल्ट में बदलते हैं लार्वा, तो वो बायलेटरल सिमेट्री उनकी लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, उनकी बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उनमें एक प्रोसेस चलता है जिसे बोलते हैं टॉर्जन, TORSION, टॉर्जन। वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ मोलस्क जो लार्वल फॉर्म में तो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो लार्वा की मेटामॉर्फोसिस हुआ, एडल्ट बना, वो एसिमेट्रिकल कैसे हो गए, कैसे सिमेट्री लूज कर दी उन्होंने? उनके बॉडी के अंदर जो उनकी एलिमेंट्री ट्रैक्ट है वो अपने आप को रोटेट कर लेता है, ठीक है। उसमें माउथ और एनस पहले 2 एंड्स पे थे अगर एलिमेंट्री कैनाल के, तो उनकी एलिमेंट्री कैनाल में एक यू शेप टर्न आ जाता है और माउथ और एनस एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। ये जो टॉर्जन की स्टोरी है मैं इसको डिटेल में कल सुबह लूंगी, जो मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी समझाती हूँ उसमें मोलस्का का टॉर्जन समझाऊंगी, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसका लगेगा। अभी सिर्फ इतना जान लो कि बायलेटरल सिमेट्री होती है जनरली मोलस्क में, लेकिन कुछ मोलस्क ऐसे होते हैं जो अपनी सिमेट्री को मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में लूज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टॉर्जन, ठीक है। चलिए, ये एनिमल्स जो है इनकी बॉडी में कैविटी होती है, इट इज अ ट्रू सिलोम लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में मीजोडर्म से लाइंड कैविटी होती है, सिलोम कहते हैं जिसको, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी के सेगमेंटेशन की। बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है इन एनिमल्स की, ओके, और वो बॉडी के ऊपर कोई सेगमेंट नहीं होता, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, ठीक है। तो सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी, ये इनकी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
क्योंकि बॉडी सॉफ्ट है तो उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है ना। देखो कितनी सॉफ्ट बॉडी का एनिमल है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए इसकी बॉडी के ऊपर ये एक लेयर चढ़ी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, ये जो सबसे बाहर ये कैल्केरियस लेयर है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। तो इसकी बॉडी एक शेल से कवर्ड होती है, वो इसके प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, बॉडी को तीन भागों में जनरली बांटा जा सकता है मोलस्का की। देयर इज अ एंटीरियर हेड, then there is a posterior foot, muscular foot and visceral hump. ठीक है, देखिए ये इसका हेड रीजन है, जहां इसका माउथ प्रेजेंट होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो हेड रीजन है। ठीक है, पीछे इसका ये फुट है, दिस इज द फुट रीजन। ठीक है, एंड देन ये पूरा ही इसका नीचे ये फुट रीजन है। ठीक है, जिससे सबस्ट्रेटम से अपने आप को अटैच करता है। देन देर इज ये पूरा का पूरा ये क्या है, इसका विजरल हम्प है। विजरल हम्प व्हाट डू यू मीन बाय विजरा? विजरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड विजरा। ठीक है, तो ये पूरा इसके इंटरनल ऑर्गन्स है इसके बॉडी कैविटी के अंदर, और इसीलिए ये पूरा ऑर्गन्स एक एक सैक, एक थैले के अंदर भरे हुए ऑर्गन लगते हैं, तो एक हम्प बनाते हैं। आप देख रहे हैं ये एक फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये एक हम्प के फॉर्म में है, इसीलिए इसको बोलते हैं विजरल हम्प। ओके, तो तीन पार्ट हो गए, एक इसका हो गया हेड, एक हो गया इसका फुट, तीसरा हो गया विजरल हम्प। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है, स्किन इसकी बहुत ही स्पॉन्जी होती है। ठीक है, और देखिए ये एक जो पूरा विजुअल हम्प है, इसके ऊपर ये एक स्पॉन्जी सी स्किन ले हो गई है। पर्पल कलर का लेयर देख रहे हैं आप, ये ब्रिंजल कलर का है ना, तो ये ब्रिंजल कलर का जो लेयर है, ये एक स्किन ले हो गई है इस हम्प के ऊपर। ठीक है, इस स्किन को क्या बोलते हैं? मेंटल, MENTLE, मेंटल। इसका एक और नाम भी है पैलियम, PALLIUM। ये नाम आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको आगे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में आ सकता है। मेंटल इज ऑल्सो कॉल्ड पैलियम, PALLIUM। तो ये मेंटल या पैलियम नाम की ये स्किन की एक टिश्यू है, स्किन का टिश्यू, जो ये विजुअल हम्प के ऊपर ले हो गया है, इसके ऊपर इसको एनवेलप कर रहा है। बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मेंटल की, ये जो लेयर है। एक तो विजुअल हम्प को ये प्रोटेक्ट करता है, उसको लिमिट करता है। दूसरा, ये हर वक्त एक सिक्रीशन बनाता रहता है। क्या एक्चुअली ये करता क्या है, आसपास का जो पानी है, पानी से कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करता है, और उस कैल्शियम कार्बोनेट को अपने ऊपर डिपॉजिट करता रहता है, उसकी एक लेयर बनाता रहता है। ठीक है, उस लेयर से क्या बन जाता है इसकी बॉडी के ऊपर? एक शेल बन जाता है। देखो मेंटल का क्या काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग द शेल। वो शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। कहाँ से आया है कैल्शियम कार्बोनेट? फ्रॉम द सराउंडिंग सी वाटर। तो ये मेंटल के लेयर आसपास के सी वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करती है और अपने ऊपर डिपॉजिट करके एक शेल बनाने का काम करती है। ऐसे बनता है शेल मोलस्का का। ठीक है, अब ये जो मेंटल जो स्किन की लेयर है, और जो ये विजरल हम्प है पूरा, है ना, विजरा है, इसके बीच में एक कैविटी होती है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। ये फ्लूइड से भरी होती है मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी के अंदर क्या क्या है? इसमें इस एनिमल के गिल्स होते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, देख रहे हो ये, दीज आर द गिल्स। ये पत्ते के शेप में गिल्स हैं, ये इसको ब्रीदिंग में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें इसकी एनस है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, फीकल मैटर को डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, इसके अलावा और इसमें क्या होते हैं? इसमें इसके गोनोपोर्स होते हैं। गोनोपोर मतलब जो इनके जेनिटल अपर्चर्स होते हैं। ठीक है, जहां से इनका जो लार्वा है या जो इसके फर्टिलाइज्ड एग्स है वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ द मेंटल कैविटी इज डूइंग सो मेनी फंक्शंस। ओके, पता लग गया अब आपको कि ये इसका हेड रीजन पहले, ठीक है, हेड रीजन के बाद ये इसका फुट रीजन है, ये पूरा इसका विजरल हम्प है। विजरल हम्प को लिमिट करती है एक स्किन की लेयर जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल के ऊपर ये शेल बन जाता है, मेंटल ही बनाती है शेल, और मेंटल और विजरल हम्प के बीच में एक कैविटी है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system in case of mollusk, it is complete alimentary tract. ठीक है, यस काजल, यू आर राइट। ऑक्टोपस के अलावा सभी में शेल होता है, ये मैं आपको बता ही देती हूँ। पहले शेल के बारे में बात हो रही है तो हम एक बार शेल के बारे में बात ही कर लेते हैं। देखिए ये जो शेल है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल किसका दिखाया? पाइला। ये एप्पल स्नेल है पाइला। ठीक है, तो पाइला में तो शेल होता है। ठीक है, मैं एक बार इसकी पहली स्लाइड पे आपको ले जाती हूँ। यहाँ पर देखो, ये है पाइला, इसमें एक्सटर्नल शेल दिख रहा है आप सबको?
दिख रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही एक्सटर्नल शेल इसमें भी है, काइटिन में भी है ना, डेंटेलियम में भी है। इन सभी की बॉडी में एक्सटर्नल शेल पाया जाता है। ठीक है, ये जो दो मेंबर मैंने आपको दिखाए हैं, ये बहुत ही स्पेशल टाइप के दो मेंबर है, सीपीआर और लॉलिगो। इनमें एक्सटर्नल शेल नहीं है बॉडी में बाहर, इनकी बॉडी बाहर से सॉफ्ट होती है, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो शेल है बॉडी की इस लेयर के अंदर है। इन दोनों में, सीपी और लॉलिगो में, इंटरनल शेल होता है। ठीक है, दे हैव गॉट इंटरनल शेल इन देम, राइट। और ये एक मेंबर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में क्या होता है, इसमें शेल ही नहीं होता। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी शेल, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल, कोई शेल इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देयर इज नो शेल प्रेजेंट। इसका मतलब ये इतना, ये तभी इसे डेविल फिश कहते हैं। ये ऑफेंस और डिफेंस दोनों ही बहुत अच्छे से कर लेता है। और आपको पता है शेल सिर्फ उन्हीं एनिमल्स में चाहिए जिनको जो थोड़े डिफेंसिव हैं, यानी कि जिनको अपने डिफेंस के लिए एक प्रोटेक्टिव स्केलेटन की, इंटरनल या एक्सटर्नल स्केलेटन की जरूरत है। ठीक है, तो ऑक्टोपस तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको, इसमें कोई शेल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि शेल जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है शेल हो ही ना। ठीक है, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रैक्ट है इसके अंदर। ठीक है, इस कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, यहाँ देखो, यहाँ से माउथ शुरू हो रहा है और ये एनस में कंप्लीट हो रहा है जाकर। ठीक है, ये देख रहे हैं, माउथ है। ठीक है, माउथ के बाद ये पूरा इसका स्टमक, स्टमक के बाद ये लंबी सी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एंड्स इनटू एनस। सो कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज देयर। डाइजेशन प्रॉपर्ली होता है, सारे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज, लाइपेज, सब एंजाइम्स हैं, और मैक्सिमम डाइजेशन इसका इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट एनस से बाहर निकल आता है। ठीक है, माउथ में इसके खाने को चबाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेड्यूला। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको, रेड्यूला के बारे में, क्या रेड्यूला कैसे काम करता है। ये देखो, द माउथ हैज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। इसका कॉमन नेम क्या है, रेस्पिंग ऑर्गन। फॉर फीडिंग इट इज कॉल्ड रेडुला। ठीक है, इसको आपके मुंह में जो आपके जैसे माउथ कैविटी में दांत है उससे कंपेयर किया जा सकता है, जैसे आप दांतों से खाने को चबाते हो, बिल्कुल वैसे ही रेस्पिंग ऑर्गन भी खाने को चबाने में मोलस्क की हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका हेड है, नीचे इसका फुट है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, ये हेड के टेंटिकल्स दिख रहे हैं हेड में, ये नीचे इसका फुट है, और यहाँ ये माउथ है इसका। ठीक है, माउथ में आपको दिख रहा है ये रेस्पिंग ऑर्गन ग्रीन कलर का, ये रेडुला है। इसमें काइटनस प्लेट्स होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 8 काइटनस प्लेट्स आर देयर, और ये काइटनस प्लेट्स के बीच में ये खाने को चबाता है। खाना जब उन काइटनस प्लेट्स के अंदर आता है, काइटिन से बनी हुई प्लेट्स के अंदर, तो वो फ्रिक्शन करती है और उससे खाना पूरा मैस्टिकेट हो जाता है, इसकी ग्राइंडिंग हो जाती है खाने की, ये इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ताकि इसके ऊपर आराम से एंजाइम्स एक्शन कर सके। फिर ये खाना स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, एंजाइम्स इस पे एक्शन करते हैं, खाने का डाइजेशन हो जाता है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट एनस के थ्रू मेंटल कैविटी में रिलीज हो जाता है, मेंटल कैविटी से वो आउटसाइड वाटर में चला जाता है। तो इस तरह से खाने का डाइजेशन होता है। ठीक है, ये रेडुला बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि रेडुला कौन से फाइलम में आता है, कि क्या पार्ट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या होता है। तो अब आपको समझ में आ गया, माउथ में रेडुला प्रेजेंट होता है, इट इज अ रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन मोलस्क। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू द अदर फीचर्स। ठीक है, यहाँ आपको मेंटल के बारे में बता दिया, इट इज अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द मोलस्क बॉडी। ठीक है, feather like gills are present in the mental cavity, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, क्योंकि एक्वाटिक होते हैं जो मोलस्क, उनमें गिल्स की जरूरत होती है। ठीक है, गिल्स, ये जो इसमें जो गिल्स हैं, इनका मेन काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना। ठीक है, और साथ ही एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। गिल्स आर यूज्ड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन। Cilia on the gills, they create a flow of oxygenated water through the mental cavity, carrying off carbon dioxide and nitrogenous waste. तो ये गिल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो सीलिया जब बीट करते हैं तो वाटर का करंट क्रिएट होता है, वो वाटर करंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग वाटर है वो भी बाहर निकल जाता है, और साथ ही जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बॉडी के,
वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो इससे हमें ये पता लग गया कि गिल्स यहाँ डुअल फंक्शन कर रहे हैं, दो फंक्शन कर रहे हैं, एक तो ब्रीदिंग का और दूसरा एक्सक्रीशन का। इसका मतलब मोलस्का में कोई अलग से एक्सक्रीशन के लिए, पाइला एप्पल स्नेल में एक्सक्रीशन के लिए कोई भी अलग से ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो इसका एंटीरियर हेड है, ये देखो इसका हेड रीजन है ये, ठीक है, यहाँ पे इसका माउथ है, ये इसका हेड रीजन है। हेड रीजन में इसके पास दो पेयर एंटेना के होते हैं, सॉरी दो पेयर टेंटिकल्स के होते हैं, राइट। देख सकते हैं आप ये इसके माउथ के पास ओरल टेंटिकल्स हैं और ये इसके एंटीरियर टेंटिकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेंटिकल्स हैं इनका काम क्या है, दे आर सेंसरी टू कॉन्टैक्ट, ये टच रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट को सेंस करते हैं। Their tentacles they contain both tactile and chemoreceptor cells. एक तो टच रिसेप्टर होते हैं ये, दूसरा कीमो रिसेप्टर होते हैं। कीमो रिसेप्टर मतलब केमिकल्स को सेंस कर सकते हैं, पानी में अगर केमिकल्स की नेचर चेंज होती है उसको ये सेंस कर सकते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स दे आर ऑल्फैक्टरी इन नेचर, उनका स्मेलिंग पर्पस होता है, ठीक है, दे आर आल्सो हैविंग द सेंस ऑफ स्मेल। इस पे यहाँ जो आपको टेंटिकल्स दिखाए हुए हैं इनके ऊपर आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। आई स्पॉट्स दे आर इक्विवेलेंट टू आईज, लेकिन इनमें कोई विजन नहीं होता है, ठीक है, इनमें रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते, ये कोई क्लियर इमेज फॉर्म नहीं कर सकते। इनका काम सिर्फ होता है लाइट की इंटेंसिटी को जज करना, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है उसको ये सेंस कर सकते हैं आई स्पॉट्स, ठीक है। तो टेंटिकल्स दे बियर द आई स्पॉट्स ओवर दैट। तो आपको समझ में आ गया कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं मोलस्का में, एक तो टेंटिकल्स हैं दो पेयर और आई स्पॉट्स है, ठीक है। जनरली दिस मोलस्क दे आर डायशियस, ठीक है, डायशियस का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल। मेल मोलस्क इज डिफरेंट and female mollusk is different. Male animal is different, having male gonads producing male gametes. Female organism is different, who has got female gonads or ovaries and forms the female gametes or the eggs. ठीक है. Now they also show sexual dimorphism. इसके बारे में पहले भी बताया मैंने आपको. Sexual dimorphism का मतलब होता है कि male and female organism can be distinguished on the basis of their morphology. आउटर अपीयरेंस के बेस पर, उनके आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आप मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दीज एनिमल्स आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, एग लेइंग। They don't give birth to the young ones, but they lay the eggs. When these eggs become mature, they hatch and they give rise to the young one or the larva. Okay. Now, how the fertilization occurs? Male organism forms sperms in the testes inside the body, and then the male mollusk, it inserts the male gametes into the female reproductive tract of the female. Female organism में the male gametes are inserted. ठीक है? Then, when the male gametes reach the female reproductive tract, then the fertilization occurs in the female reproductive tract itself. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। सो द फीमेल गैमीट और द एग आल्सो रीचेस यूट्रस, मेल गैमीट्स और द स्पर्म्स दे आल्सो रीच द यूट्रस ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हियर द फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मोलस्का, यू विल से साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और द एरिया ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूट्रस, ठीक है। Now, once the fertilization occurs, zygote is formed. The eggs, they become fertilized. Now, fertilized eggs, they are liberated on some moist place by the female so that the eggs do not dry up. उनको moist रखना जरूरी है ताकि वो moist रहे, उनके अंदर embryo develop होता रहे, young one पूरी तरह develop हो जाए तो eggs hatch हो सके। ज्यादातर जो मोलस्क होते हैं उनमें डायरेक्टली यंग वन नहीं बनता है, उसमें एक लार्वल स्टेज होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज इज देयर। तो जब एग्स हैच होते हैं तो लार्वा प्रोड्यूस होता है पहले, और फिर वो लार्वा धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट करता है और यंग वन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं जिसमें लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द मोलस्क दे हैव indirect development, they have some larval stage in their life cycle. Okay,
Okay, so now the phylum Mollusca is over. Now we switch on to the next phylum, phylum Echinodermata. Echinodermata, ठीक है, नेक्स्ट फाइलम पे आ गए हम. इसमें ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइलम है, बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसके. लाइक दीज आर द मेंबर्स, जो बड़े कॉमन मेंबर्स हैं, आप सब इनके बारे में जानते हैं. ये सबसे कॉमन मेंबर है स्टार फिश. देखो इसकी बॉडी किस तरह से स्टार शेप्ड है ना. देखो ये इसकी आर्म्स हैं, कितनी आर्म्स हैं इसकी बॉडी में, 1 2 3 4 5, 5 आर्म्स हैं इसकी बॉडी में. ठीक है, अलग अलग कलर्स, अलग अलग पिगमेंट्स की होती है स्टार फिश. बहुत वेराइटी है इनकी बॉडी में. ठीक है, मॉर्फोलॉजी बहुत डाइवर्स है. क्या बोलते हैं स्टार फिश को बायोलॉजिकली, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, एस्टीरियास. इट इज एस्टीरियास स्टारफिश. ओके, अब यहाँ इसका दूसरा मेंबर आ गया इकाइनोडर्मेटा का. क्या बोलते हैं इनको, इकाइनोडर्मेट्स. सेकंड इकाइनोडर्मेट एग्जांपल क्या है, इकाइनस. इकाइनस मतलब सी अर्चिन. दिस इज सी अर्चिन. इसमें भी बहुत वेराइटी होती है, बड़े अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, बॉडी फॉर्म्स भी बहुत अलग अलग है. तो दे मेक अ ब्यूटिफुल अंडर वाटर लाइफ. ठीक है, आपने कभी डिस्कवरी चैनल या अदरवाइज किसी और साइंस के चैनल पे आपने अंडर वाटर लाइफ को, ओशियानिक लाइफ देखी हो, तो आपने देखा होगा ये सारे मेंबर्स वहां बहुत प्रोमिनेंट होते हैं. ठीक है, एंटीडॉन, थर्ड इकानोडर्म इज एंटीडॉन. एंटीडॉन मीन सी लिली. आपको नहीं लगता एक लिली फ्लावर है, ये लिली के फ्लावर के जैसा है. तो इसे, क्योंकि ये सी में एनिमल पाया जाता है और लिली को रिजेंबल करता है, इसीलिए इसका नाम हो गया कॉमन सी लिली. ओके, और एंटीडॉन इसका बायोलॉजिकल नेम है. ठीक है, ये बाकी के दो मेंबर्स बड़े कॉमन मेंबर्स हैं. मैंने वही मेंबर्स आपके इसमें एग्जांपल्स के तौर पे लिए जो एनसीईआरटी में गिवन है. ठीक है, वैसे तो बहुत मेंबर्स हैं कैनाडामेटा में, पर वही मैंने 4-5 मेंबर्स आपको शो किए जो आपकी एनसीईआरटी बुक में, आपके सिलेबस में है. सो नेक्स्ट इज कुकुमेरिया. ये देखो खीरे की तरह लगता है ना, बिल्कुल इसकी अपीयरेंस खीरे की जैसी है. तो ये क्योंकि सी एनिमल है एंड इट अपीयर्स लाइक अ कुकुम्बर, सो इट इज कॉल्ड सी कुकुम्बर इन कॉमन. ओके, और साइंटिफिक नेम भी इसी बेस पर इसका हो गया कुकुमेरिया. ठीक है, इट इज कुकुमेरिया. दिस इज अगेन अ स्टार शेप्ड एनिमल. देखो इसकी सेंट्रल, जो ये सेंट्रल डिस्क है बॉडी की, ये भी स्टार शेप्ड है ना. इसमें भी 5 लिम्स होते हैं स्टारफिश की तरह, लेकिन ये 5 लिम्स बिल्कुल थ्रेड लाइक है, लाइक राइट. और सेंटर में इसकी डिस्क, क्योंकि सेंट्रल डिस्क बॉडी की स्टार शेप्ड है, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रिटल स्टार. इट इज वेरी ब्रिटल, वेरी हार्ड, है ना. बॉडी इज वेरी हार्ड इन मॉर्फोलॉजी, सो इट इज ब्रिटल स्टार एंड साइंटिफिक नेम इज ऑफ्यूरा. ओके, चलिए अब इसके बाद ये आपको सारे मेंबर समझ में आ गए. 5 मेंबर बड़े इंटरेस्टिंग मॉर्फोलॉजी और इंटरेस्टिंग फीचर्स वाले एनिमल्स हैं, बड़े ही कलरफुल हैं. ये अंडर वाटर लाइफ को कलर्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही स्पार्कलिंग कलरफुल बना देते हैं. ठीक है, चलिए अब हम इकानोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं. देखो ये जो एनिमल्स हैं इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. ठीक है, और वो एंडोस्केलेटन किस चीज का बना है, कैल्केरियस ऑसिकल्स का. ठीक है, इसको हम सबसे पहले इसके नाम पे आ जाते हैं. इकानोडर्मेटा. इस फाइलम को इकानोडर्मेटा क्यों कहते हैं. डर्मेटा मींस डर्मा स्किन, इकाइनस स्पाइंस. तो इसकी जो बॉडी की स्किन है दैट बियर स्पाइंस ओवर इट. ठीक है, स्पाइनी बॉडी है इसकी. ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका वेंट्रल सरफेस है और ये इसका वेंट्रल सरफेस है और ये इसका डोर्सल सरफेस है. कैसे पता चला हमें, देखो जो वेंट्रल सरफेस होता है उसमें माउथ होता है. ठीक है, यहाँ माउथ दिख रहा है ना आपको. तो स्टारफिश अगर बैठी हुई है तो उसमें, जैसे ऊपर मैंने ये दिखाया आपको, ये सपोज इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम. तो ये देखो इसका अपर सरफेस जो आपको दिख रहा है, ये इसका डोर्सल सरफेस है. ठीक है, और जो नीचे ग्राउंड की तरफ, सबस्ट्रेटम की तरफ इसका सरफेस होता है, वो इसका वेंट्रल सरफेस होता है. वेंट्रल सरफेस ओरल सरफेस कहलाता है. ओरल, ओरल मतलब उसमें माउथ है. ठीक है, और ये जो इसका डोर्सल सरफेस है, यहाँ इसकी एनस होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एब ओरल. ए बी एब ओ आर ए एल, ओरल. एब ओरल मतलब ओरल का ऑपोजिट. ये ओरल है, ये उसका ऑपोजिट एब ओरल. नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा. ये देखो ये वेंट्रल सरफेस है, ओरल सरफेस, इसमें माउथ है. ये इसका डोर्सल सरफेस है, एब ओरल सरफेस, इसमें इसकी एनस होती है. समझ में आ गई बात. ठीक है, तो ओरल सरफेस एंड एब ओरल सरफेस. चलिए अब एब ओरल सरफेस पे इसके, बेटा पॉर्क्यूपाइन कहाँ से यहाँ आ गई. पॉर्क्यूपाइन एक मैमल है, उसको कहाँ यहाँ ले आए आप, है ना.
पॉर्क्यूपाइन तो मैमल है, बिल्कुल हाँ, उसकी बॉडी पे भी स्पाइन्स होते हैं, पर जिसकी भी बॉडी पे स्पाइन हो तो थोड़ी वो इकानोडर्मेटा में आ जाएगा। ठीक है, इकानोडर्मेटा तो इनवर्टिब्रेट है, पॉर्क्यूपाइन इज अ वर्टिब्रेट। ठीक है बेटा, पॉर्क्यूपाइन एक वर्टिब्रेट एनिमल है, उसमें बैकबोन होती है, वर्टेब्रल कॉलम होता है। यहाँ कहाँ वर्टेब्रल कॉलम अभी डेवलप हुआ है, अभी तो एवोल्यूशन में बहुत पीछे है ये। ठीक है, ये इकानोडर्मेटा है, इनवर्टिब्रेट्स में आता है, इसमें कोई भी वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इकानोडर्मेटा पे आ जाते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे। ये इसका डोर्सल सरफेस है, देख रहे हो आप, ये इतने बॉडी पे इसके ये स्पाइनी स्ट्रक्चर्स है ना, स्पाइन्स प्रेजेंट है। तो ये जो स्पाइन्स है, ये जो धब्बे दिख रहे हैं आपको, ये स्पाइन्स है। ठीक है, ये स्पाइन्स कैलकेरियस ऑसिकल्स हैं। ठीक है, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए ये ग्रूव्स हैं, ऑसिकल्स हैं, जो इसको बहुत ही रफ सी अपीयरेंस देते हैं इसके एब ओरल सरफेस को, इसके डोर्सल सरफेस को। ठीक है, और वेंट्रल सरफेस में ऐसे स्पाइन्स नहीं होते हैं, ये ज्यादातर डोर्सल सरफेस पे ही होते हैं। राइट, चलिए फाइलम इकानोडर्मेटा के और फीचर्स पे आ जाते हैं हम। जितने भी फाइलम इकानोडर्मेटा के मेंबर्स हैं सारे मेरीन होते हैं। ठीक है, ये सी वाटर में पाए जाते हैं, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, सब में रिपीट होगा अब ये, है ना। द एडल्ट इकानोडर्म्स दे हैव रेडियल सिमेट्री। ठीक है, लेकिन जो इनके लार्वा होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो लार्वी बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, जब वो मेटामोर्फोसिस करके एडल्ट बना देंगे या यंग वन बना देंगे तो उसमें अपने आप ही रेडियल सिमेट्री डेवलप हो जाती है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये एडल्ट स्टारफिश है, इसको आप किसी भी रेडियस से काट लो, कि कोई भी प्लेन हो इसके बाइसेक्शन डाइसेक्शन का, है ना, उसमें आपको दो इक्वल हाफ जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी रेडियस से काटने से आपको दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं, इसीलिए ये कौन सी सिमेट्री हुई, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें तीन जर्म लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर इज एक्टोडर्म, मिडल इज मेसोडर्म, इंटरनल इज एंडोडर्म। तो तीन जर्म लेयर्स हैं, इसीलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है, सिलोम, सिलोमिक कैविटी इज देयर। सिलोम पता ही है आपको, इट इज द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो ट्रू सिलोम इज देयर इन द बॉडी ऑफ इकाइनोडर्म्स। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं। देखिए स्टारफिश बनी हुई है ना, स्टारफिश का डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, पर क्यों आपकी बुक में सिर्फ इतना है कि दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ ऑन द वेंट्रल साइड, लोअर साइड, एंड एनस ऑन द अपर और द डोर्सल साइड, है ना। जहां माउथ है उसे ओरल सरफेस कहेंगे, जहां एनस है उसे एब ओरल सरफेस कहेंगे या डोर्सल सरफेस कहेंगे। तो ये इसका डोर्सल सरफेस दिखाया हुआ है, और ये डोर्सल सरफेस में आप देख रहे हो ना, ये इसके ये दिख रहे हैं सारे स्पाइन्स दिख रहे हैं इसकी बॉडी के ऊपर, है ना। अब देखिए, तो अब हम ये देख सकते हैं इसका जब डाइजेस्टिव इसका पूरा सिस्टम डाइसेक्ट ओपन किया तो देखो क्या है इसमें, ये माउथ है ना, माउथ के पीछे छोटी सी ईसोफेगस आ गई, ईसोफेगस के पीछे इसकी स्टमक है। ठीक है, स्टमक को दो भागों में बांटा हुआ है, जैसे आपकी बॉडी में जो स्टमक होता है उसका कार्डियक स्टमक, कार्डियक पार्ट होता है, एक पाइलोरिक पार्ट होता है, बिल्कुल ऐसे ही इसकी बॉडी में भी ये इसका कार्डियक पार्ट है, और पीछे वाला जो चैम्बर है स्टमक का वो पाइलोरिक स्टमक है। उसके पीछे इसकी छोटी सी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन लीड्स टू रैक्टम, रैक्टम के बाद एनस। क्योंकि माउथ से शुरू होती है एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एनस में कंप्लीट होती है, इसीलिए ऐसे एलिमेंट्री ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ठीक है, बिल्कुल इसका कैल्केरियस स्केलेटन बेटा इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, बिल्कुल सही। ठीक है ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में कंप्लीट होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इसका डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये डायग्राम को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ये आपको एग्जाम में नहीं आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए कि कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, माउथ से शुरू होकर एनस में कंप्लीट होता है, इसीलिए मैंने डायग्राम आपको शो किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम पे आ जाते हैं, जिसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में है। स्टारफिश की बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम अगर कोई है तो वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है इसका काम क्या है, ध्यान से देखो जरा डायग्राम को। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दिस इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकानोडर्म्स, किसी और फाइलम में नहीं पाया जाता है ये, and it is the presence of water vascular system. मल्टी फंक्शनल सिस्टम है ये, बहुत सारे काम एक ही सिस्टम कर रहा है ये। देखो क्या क्या काम कर रहा है, स्टारफिश को लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है,
फूड को कैच करने में हेल्प करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, इसके अलावा एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, वो मेंशन नहीं है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। इतने सारे काम, बॉडी की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये इसका एक तरह से इंटरनल स्केलेटन है ना, जो इसकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे रहा है। बहुत सारे काम, सपोर्ट का काम करता है ऑर्गन्स को। तो ये सब काम इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही कर रहा है। क्या है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। ये नेटवर्क है एक पाइप्स का, ठीक है, इसमें बहुत सारी पाइप्स है, उनका ये एक नेटवर्क है, ठीक है। समझ लेते हैं हम ये कैसे है। देखिए, ये इसका डोर्सल सरफेस शो किया मैंने आपको, ठीक है। डोर्सल सरफेस में मैंने क्या दिखाया था आपको, क्या होता है भाई, डोर्सल सरफेस में एक मैड्रीपोराइट नाम का मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, मैड्रीपोराइट, ठीक है। तो ये मैड्रीपोराइट है। क्या होता है मैड्रीपोराइट, ये एक फनल के जैसा होता है, ठीक है। इसमें ये सीव है, सीव फनल, ठीक है। इसमें छेद ही छेद होते हैं, राइट। यहाँ से पानी देख रहे हो आप, अंदर एंटर करता है मैड्रीपोराइट से, छन के सीव होके पानी अंदर जाता है। जब यहाँ से सीव होके पानी अंदर जाता है तो सिर्फ पानी ही अंदर जाता है, और ऑफ कोर्स छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को भी अंदर ले जाता है। वो बड़े बड़े जो सामान है, जैसे डेब्रीज है पानी में, या कोई कचरा है, या बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, या बड़े फूड पार्टिकल्स हैं, वो इसमें से अंदर नहीं जा सकते। अगर अंदर चले गए तो इसकी कैनाल्स को ब्लॉक कर देंगे। इसीलिए उतने ही साइज के पार्टिकल्स अंदर एंटर करते हैं जितने बड़े सीव के छेद होते हैं, जितने इसकी कैनाल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैड्रीपोराइट से अंदर गया सामान सारा पानी के साथ, खाना, ठीक है। और ये कहाँ चला गया, मैड्रीपोराइट से आगे नेक्स्ट इसकी कैनाल में गया। क्या बोलते हैं इसको, मैड्रीपोराइट कैनाल बोलते हैं, या इसको एक कॉमन नेम देते हैं स्टोन कैनाल। मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल में चला गया पानी खाने को लेकर। स्टोन कैनाल कनेक्टेड है इस रिंग से, देख रहे हो आप, रिंग, ठीक है, सेंट्रल रिंग है। ये बॉडी की डिस्क में रिंग होता है, सेंट्रल बॉडी में एक रिंग होता है, और क्या फॉर्म करता है, रिंग कैनाल, ठीक है। सर्कुलर कैनाल है रिंग कैनाल। और ये रिंग कैनाल से देख रहे हो, पांचों आर्म्स की इंडिविजुअल कैनाल जुड़ी हुई है। इसकी 5 आर्म्स हैं, और पांचों आर्म्स के सेंटर में एक एक कैनाल है। क्योंकि पांचों आर्म्स इसकी बॉडी के 5 रेडियस बनाती हैं, इसीलिए इस रेडियस में जाने वाली कैनाल को क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल, ठीक है। और रेडियल कैनाल से क्या जुड़े हुए हैं, ये देख रहे हो आप, ये एक जैसे आपके वो होते हैं ड्रॉपर्स, है ना, ये ड्रॉपर का बल्ब है और नीचे ड्रॉपर की ट्यूब है। तो ड्रॉपर की शेप में ये छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं। क्या बोलते हैं इनको, ट्यूब फीट। दीज आर कॉल्ड ट्यूब फीट। इंडिविजुअल इज ट्यूब फुट। और ट्यूब फुट, इतने सारे ट्यूब फीट रेडियल कैनाल के आसपास दोनों साइड पे लाइन में जुड़े होते हैं, लीनियरली अटैच्ड होते हैं। तो ये बना देते हैं रोज ऑफ ट्यूब फीट, ठीक है। फिर से समझ ले, पानी अंदर आया डोर्सल सरफेस से, एबोरल सरफेस से, मैड्रीपोराइट से छन के पानी और फूड अंदर गया स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से रेडियल कैनाल, सॉरी स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में गया, रिंग कैनाल से सारे रेडियल कैनाल में डिस्पर्स हो गया। मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, from the ring canal it goes to all the 5 radial canals. From the radial canal the water goes to the tube feet, ठीक है। ट्यूब फीट में खाना चला गया, पानी चला गया, सॉरी। और जैसे ट्यूब फीट में गया, ये एम्पुला से होते हुए इसके ये नीचे यहाँ सकर शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही पानी इनके अंदर जाता है, एक ये चिपक जाते हैं इनके अंदर। ये सारा पानी का प्रेशर इसके अंदर क्रिएट हो गया। और क्रिएट होने नहीं आदिति, इट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद लॉलीपॉप, इट शुड बी कंपेयर्ड बेटर विद अ ड्रॉपर, ठीक है। क्योंकि ड्रॉपर में आप देख रहे हो, जब ड्रॉपर के हम बल्ब को दबाते हैं तो क्या होता है, तो उसके अंदर एक हवा निकल जाती है उसकी, और जैसे हम ड्रॉपर को रिलीज करते हैं किसी फ्लूइड में डिप करके, तो उसकी कैपिलरी ट्यूब में वो फ्लूइड राइज कर जाता है, ठीक है। यस काजल, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो पानी इसके अंदर राइज कर जाता है। जब पानी राइज कर गया तो ये भर गए सारे के सारे ट्यूब फीट पानी से। ऐसे में ये जो आर्म है इसकी, ये अपने सबस्ट्रेटम से डिटैच हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। लेकिन जैसे ही ये पानी छोड़ देते हैं, पानी छोड़ने से इनके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और ये अपने ग्राउंड के साथ चिपक जाते हैं सारे। ट्यूब फीट इस पूरी आर्म को ग्राउंड के साथ चिपका देती है, ठीक है। सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह जब पानी भरता है इसमें, तो ये आर्म लिफ्ट होती है। जब पानी खाली हो जाता है ट्यूब फीट से, तो सक्शन प्रेशर क्रिएट होने से चिपक जाती है सबस्ट्रेटम के साथ।
इसी तरह बारी बारी ये अपनी आर्म्स को उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पीछे की आर्म को चिपकाते हैं, आगे की आर्म को ऊपर उठाते हैं, फिर पीछे की आर्म आगे आती है, चिपक जाती है, आगे की आर्म उठती है। तो इस तरह बड़ा रिदमिक मैनर में ये अपने आर्म्स को मूव करते हुए प्रेशर क्रिएट करते हैं, रिलीज करते हैं और मूवमेंट करते हैं। इनकी मूवमेंट जब हम देखेंगे तो बड़े हैरानी होगी देखकर। ये भी मैं आपको कोशिश करूंगी इसकी मूवमेंट के बारे में थोड़ा एक स्टोरी शेयर करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम इस डिटेल को यहीं फिनिश करते हैं। अब आपको समझ में आ गया वाटर वेस्कुलर सिस्टम में कैसे वाटर मूव करता है। पानी मैड्रिपोराइट से आया, स्टोन कैनाल में गया, रिंग कैनाल में गया, रेडियल कैनाल में गया, ट्यूब फीट में गया, और उसके बाद वापस ट्यूब फीट से रेडियल कैनाल से होते हुए, रिंग कैनाल से होते हुए मैड्रिपोराइट से वापस बाहर। तो पानी का इनलेट का रूट भी यही है, आउटलेट का भी यही है, और इस तरह से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है कभी, और सक्शन कभी प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। एंड दिस इज द वे हाउ इट मूव्स। और इसी तरह अंदर आने वाला पानी ऑक्सीजन लेके आता है और बाहर जाने वाला पानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा काम ट्यूब फीट या वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करते हैं। ये पूरा डिटेल यहाँ दी हुई है आपको, ठीक है। सो यस, it also helps in movement, it also helps in respiration, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए भी कोई सेपरेट ऑर्गन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। जितने नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, कौन सा है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें? अमोनिया। तो जो पानी मैड्रिपोराइट से बाहर जाएगा, यस, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को भी बाहर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। मूवमेंट इसमें स्लो होती है। आपको मैं मूव करती हुई स्टारफिश के कुछ इमेजेस दिखाऊंगी, बड़ी हैरानी होगी आपको देखकर। जब वो चलती है तो लगता ही नहीं कि स्टारफिश है, पहचानना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही खतरनाक सा कोई जीव लगती है वो, ठीक है। ओके, तो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, वो भी एक्सक्रीशन में बाहर चला जाता है मैडिपोराइट के थ्रू, तो इसीलिए अलग से कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर नहीं है, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप की होती है इसमें, ठीक है। ऑफ कोर्स एसेक्सुअल टाइप भी है, उसके बारे में आगे बताऊंगी, बहुत ही टिपिकल है वो, उसके बारे में बताती हूँ आपको। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होती है। जो एग्स होते हैं, फीमेल गैमीट एग्स और मेल गैमीट स्पर्म्स, दे आर गिवन आउट इन वाटर। वाटर में जो जब ये गैमीट्स जो है ऑपोजिट गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट, दे फ्यूज विद ईच अदर, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, टेकिंग प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट इज जनरली इनडायरेक्ट। लार्वल फॉर्म बनती है, और वो लार्वल फॉर्म फ्री स्विमिंग लार्वा है। फ्री स्विमिंग लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने ये कोशिश की आपको एक छोटा सा इसका लाइफ साइकिल दिखाने की, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने आपको ये बोला सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल स्टारफिश अलग होती है, फीमेल स्टारफिश अलग होती है। तो ये अडल्ट स्टारफिश है। अगर ये मेल स्टारफिश है तो ये स्पर्म्स फॉर्म करेगी, और फीमेल स्टारफिश है तो एग्स फॉर्म करेगी। ये अपने गैमीट्स को पानी में रिलीज करते हैं, और इनमें आपको बता दूं, क्योंकि ये एडल्ट डिप्लॉयड होते हैं, देखिए इसमें ब्लू कलर का जो सिंबल है ये एरो का, ये डिप्लॉयड स्टेजेस शो कर रहा है, और येलो, मस्टर्ड येलो कलर का जो सिंबल है ये एरो है, ये हैप्लॉयड स्टेजेस शो कर रहा है। तो जो गैमीट्स बनते हैं एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं। एग भी हैप्लॉयड है और स्पर्म भी हैप्लॉयड है, तो ये हैप्लॉयड स्टेजेस हैं इसकी लाइफ साइकिल की, गैमीट्स, ठीक है, सिर्फ गैमीट्स। वंस द एग एंड स्पर्म्स दे आर लेड इन वाटर एंड दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट इसका पहला डिप्लॉयड स्टेज आ गया। फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट बनाता है, और वो फिर से डिप्लॉयड स्टेज हो गई। जाइगोट डिवाइड करता है, 8 सेल स्टेज बनाता है, ब्लास्टुला, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ब्लास्टुला जो है ये आपके ये सारी स्टेजेस आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ शोन है। ये एक्चुअली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, ठीक है, 12th में पढ़ेंगे आप इनके बारे में। दीज एम्ब्रियोनिक स्टेजेस दे टर्न इनटू अ लार्वा, दे डेवलप इनटू अ लार्वा। तो इंटरमीडिएट स्टेज इसमें लार्वा बन रहा है, ठीक है। ये लार्वा फ्री फ्री स्विमिंग है। फ्री स्विमिंग यानी कि अपना भोजन खुद खाता है, खुद इकट्ठा करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें, खाने पीने का इंतजाम अपना खुद करता है, डिपेंडेंट नहीं है ये एडल्ट पे, और पानी में स्विम करता है। धीरे धीरे इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है एंड इट टर्न्स इनटू एडल्ट, ठीक है। तो एडल्ट बन जाता है, इस तरह इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, ठीक है। बेटा रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है। मैंने अभी तो आपको ये बताया है कि इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो ट्यूब फीट है वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं। ऑक्सीजन का इनटेक होता है इनकमिंग वाटर के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है कैनोडर्म्स में।
और वो एक टिपिकल मेथड से होती है रीजनरेशन। तो बहुत ही कमाल की बात है, स्टारफिश में भी रीजनरेशन का प्रोसेस पाया जाता है। अगर इसका हाफ जो बॉडी पार्ट जो है टूट जाए, ठीक है, आपने सुना होगा कि स्टारफिश जो है कभी अगर कोई प्रे इसको पकड़ ले, इसकी एक आर्म से पकड़ ले, 5 आर्म्स है इसके पास, अगर किसी एक आर्म से कोई प्रेडेटर इसको पकड़ ले, सॉरी प्रेडेटर अगर इसको एज अ प्रे पकड़ ले, तो क्या होगा, ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए क्या करेगी, अपनी आर्म उसके मुंह में ही छोड़ के भाग जाएगी। सो दिस इज द वे ऑफ डिफेंस। क्योंकि से मालूम है कि अगर वन आर्म इज लॉस्ट, इट कैन इजीली रीजनरेट द लॉस्ट आर्म, ये अपने लॉस्ट लिम्ब को रीजनरेट कर सकती है। लेकिन रीजनरेशन का एक छोटी सी एक कंडीशन है, रीजनरेशन तभी हो सकती है अगर सपोज ये आर्म टूट गई इसकी, है ना, तो इसकी रीजनरेशन तभी हो सकती है अगर इसकी जो सेंट्रल डिस्क है, बॉडी की सेंट्रल डिस्क, उसका कुछ भाग उस आर्म के साथ अटैच्ड हो। सेंट्रल डिस्क अगर इसका छोटा सा भी पार्ट सेंट्रल डिस्क का आर्म से अटैच्ड है, तो वो आर्म पूरी की पूरी स्टारफिश को रीजनरेट कर लेगी। स्टारफिश ने अपनी आर्म अगर डिटैच कर दी है अपनी बॉडी से, लूज कर दी है, इट कैन सिंपली रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। यस, रिप्रोडक्शन दो प्रकार की हो गई फिर, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है भाई सुजीत, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह से रीजनरेशन के तरीके से होती है। ओके, तो अब देख सकते हैं आप यहाँ जो रीजनरेशन है, इसमें आप ये जो एनिमल है, इसको सपोज यहाँ से डिटैच हो गया, ये इसके दो पार्ट्स हो गए, ये दो आर्म्स अलग हो गई, ये 3 आर्म्स अलग हो गई, इसके साथ भी सेंट्रल डिस्क का कुछ पार्ट है, इसके साथ भी पार्ट है, तो बहुत जल्दी ही अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अराउंड a fortnight it takes maximum, almost 10 to 15 days and it regenerates itself। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज में रीजनरेशन का जो टाइम स्पैन है वो अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ ये रीजनरेट होके इन्होंने दो अलग अलग स्टारफिश बना दी। ठीक है, तो द सिवियर्ड लिम्ब, मतलब जो कट लिम्ब होता है, रीजनरेट्स इनटू अ फुल्ली ग्रोन स्टारफिश अनलेस इट इज ऑलरेडी अटैच्ड टू एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ सेंट्रल डिस्क। ठीक है, रीजनरेशन इज मेनली फाउंड इन स्टारफिश। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद, हाँ बेटा हिमानी, एक पॉरीफेरा में भी कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत ही प्रिमिटिव कैनाल सिस्टम है, उसको हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें वो बड़ा ही सिंपल कैनाल सिस्टम था, राइट। उसमें सेल लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो इसलिए इनकम्पैरेबल है ये, राइट। यस, इट इज अ ट्रू रीजनरेशन मंजू। ठीक है, ऑक्टोपस में रीजनरेशन होती है नहीं, मैंने सुना नहीं बेटा ऑक्टोपस में, बट वी कैन चेक, आई एम नॉट श्योर ऑक्टोपस में होती है कि नहीं। ऑक्टोपस में नहीं होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टारफिश ही एक मेंबर है काइनोडर्म्स का जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। ठीक है, नाउ असाइनमेंट 5 पे आ जाते हैं। असाइनमेंट 5 ये आपको मैंने आज की असाइनमेंट दी है। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। ये आज हमने कंप्लीट कर लिए, तो आप मोलस्का के सारे फीचर्स को लिस्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, 3 मार्क का क्वेश्चन आया है तो 6 फीचर दे दो, 5 मार्क का क्वेश्चन आया है तो आप 10 फीचर लिस्ट कर दो, इतने तो बताया ही है मैंने आपको आज। ठीक है, देन वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अभी बताया मैंने आपको, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन इकाइनोडर्म्स। ठीक है, फंक्शन, इनके ढेर सारे फंक्शन है, सब मैंने आपको लिस्ट करके बताए, आप इनका लिस्ट बना सकते हैं। वाई फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज नेम्ड सो, है ना, इनमें स्पाइनी इनकी रफ बॉडी होती है डोर्सल साइड पे, दैट इज वाई। Yes, water vascular system and regeneration are very two important properties of echinoderms. Very good. ठीक है, तो water vascular system का आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उनके फंक्शन बता सकते हैं, echinoderms को क्यों echinoderms बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनी इनका जो डॉर्सल सरफेस होता है उसके बारे में बता सकते हैं आप, है ना। देन वेयर इज मेंटल कैविटी लोकेटेड इन मोलस्का, बता सकते हैं मेंटल कैविटी कहाँ होती है, मेंटल लेयर एंड उसकी जो विजरल हम्प है उसके बीच में एक कैविटी है, मेंटल कैविटी। फंक्शन बता सकते हैं मेंटल कैविटी का क्या है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ना, एनस से जो वेस्ट निकला वो यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है, तो बहुत सारे काम है इसके। यस हिमानी, यू आर राइट, बिल्कुल सही। ओके, नाउ व्हाट इज रेडुला, इट इज अ, यस रेडुला के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन आप आंसर करो, व्हाट इज रेडुला, इसका कॉमन नेम क्या है इस ऑर्गन का।
Okay, you people have started thanking me. This is last question which is still left. You all are welcome. चलिए अब बताइए व्हाट इज रेडुला. इसका कॉमन नेम बताओ बेटा रेडुला का. वेरी गुड हिमानी भटनागर. वेरी गुड. रेडुला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन. ठीक है. इट इज मेनली फॉर ग्राइंडिंग द फूड. इसको हम मेस्टिकेशन से कंपेयर कर सकते हैं पर मेस्टिकेशन टर्म लिखना मत. मेस्टिकेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर चूइंग ऑफ फूड इन हायर एनिमल्स. है ना. तो इसीलिए इसको हम रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं. कहाँ प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ मोलस्क. फंक्शन क्या है. ग्राइंडिंग ऑफ फूड. वेरी गुड. पूर्वी इज करेक्ट. प्रीत शिखा बिल्कुल सही. वेरी गुड. तो बहुत बढ़िया. आप सबने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू फाइला एंड यू फाउंड दिस सेशन इंटरेस्टिंग. आई विल कम अप विद मोर स्टोरीज टुमारो. जो मैंने आज प्रॉमिस की है वो कल मैं आपको बताऊंगी. So join the session tomorrow after revising the today's session. Complete this assignment in your notebook. Study well and take care. Thank you.